So yesterday we were talking about the pardoning powers. So today we are beginning in that line. So Article 72 mentions about the pardoning power of the president. We talked that in the martial law, in the union law, and in others, the president's power of pardoning is supreme and even beyond the power of the Supreme Court. The CGI of the court can also not compel the President of India to not pardon. It is a discretionary power, or we can say it is the supreme power of the President of India. Then Article 72 pardoning power of the President scope क्या है? All cases in which the sentence is of death, यानी अगर आपको डेथ पेनल्टी है, जिसकी हमने बात की कि डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रीजनमेंट भी बोला। डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रीजनमेंट में फर्क क्या होता है? डेथ पेनल्टी में आपको सजाए मौत दी जाती है और लाइफ इम्प्रीजनमेंट में आपको जितनी भी आपकी उम्र है, उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन जो डेथ पेनल्टी है वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है, क्योंकि लाइफ इम्प्रीजनमेंट में आपको स्कोप होता है कि आपका जो बैकिंग क्रेडेंशियल्स है, आपका लाइफ लॉन्ग जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो अगर अच्छा है तो लाइफ इम्प्रीजनमेंट के अंदर, जैसे कि हमने कल भी बात की थी, दिन और रात 24 घंटों को 2 दिन मान के आपकी सजा को छोटा किया जाता है। और दूसरा, लाइफ इम्प्रीजनमेंट में भी 3 या 4 तरीके की सजा होती है, जिसमें 14 से 27, 27 से 35, इस तरीके से आपके ईयर्स कैलकुलेट और डेज कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद सेंटेंस ऑफ कोर्ट मार्शल, जब हमने देखा कि अगर आप डिफेंस फोर्सेस से या उनके प्रावधान के अंदर कोई भी एक्ट, क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो आपको नॉर्मल जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको डील नहीं करता। मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री पुलिस आपको सीज करती है और वहां पर आपको बेल का भी प्रावधान नहीं होता। जो मिलिट्री कोर्ट आपको सजा देगी वो आपको माननी होती है। अगर रिसेंट में हम एक एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। नंबर 1 is the flying lieutenant of the Indian Air Force who cracked the UPSC civil service exam and got the rank in 200 or 300s in the merit list, but he was disbanded from the Air Force as a part of disciplinary action because he didn't mend the conduct rules of the Air Force Act 1950. The court marshaled him, the Air Force court marshaled him, and he was not considered as the defense force personnel. The matter went to the UPSC, and finally the case went to the High Court, and High Court said that yes, the defense force personnel is not allowed to join the civilian administration the time he is part of the military administration. The reason being, if every military personnel will do this, it will lead to indiscipline into the defense forces, where the discipline is the second principle, number 1. Number 2, if such kind of cases will rise, then the conduct of the defense force personnel within the army or air force and navy will not be as per the standards of the defense. It will affect their duty and their work profile for the post-retirement benefits. And number 3, the reservations which have been provided by the conventions, by the law, in which we give them rebate of 5 to 10% the time they are retiring from the defense forces, and the defense forces provide them enough opportunities to get enrolled into the civil administration, into the private sector. They provide them MBA courses, PG diploma courses, and other professional courses so that they can earn their livelihood post their retirement from the defense forces. If such kind of thing will happen, the defense forces personnel will prepare the exam, prepare for the UPSC and other state exams while serving in the defense forces. That will harm the interest, and that showcases that the spirit of nationhood, the spirit of selfless service is not reflected at that time in those defense personnel. Hence, the Supreme Court and the High Court said that though they have appeared in the exam, so it is against the conduct rule, but you cannot court martial them, just take them back and set a precedent that further onward no such defense personnel will be allowed to do so, and there will be a proper scrutiny committee who can supervise them in the case of such incidences. Then president's power to pardon death sentences. With respect
रिपोर्ट ऑन कैपिटल पनिशमेंट 1967। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लॉ इज मेड फॉर मैन एंड जस्टिस इज मच मोर देन मेयर कोर्ट्स एंड प्रेसिडेंट्स। तो जो डेथ सेंटेंस कोर्ट पास करती है उसमें भी कई बार जो है अपील का आपको राइट होता है। क्यों? इन 5 मुद्दों के ऊपर। पहला, अच्छे से कोर्ट के सामने फैक्ट्स पेश नहीं किए गए लेकिन कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो फिर आपके पास राइट टू अपील कहाँ बचता है? प्रेसिडेंट के पास। तो आप प्रेसिडेंट को ये कह सकते हैं कि मेरे फैक्ट्स जो थे अच्छे से नहीं रखे गए, उनमें जो है फ्रॉडरी जैसी चीजें देखने को मिली, लेकिन वो साबित होना चाहिए। दूसरा, फैक्ट्स प्लेस बिफोर द कोर्ट बट नॉट इन द प्रॉपर मैनर, यानी आपका जो सीक्वेंस, आपका जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट था वो सही नहीं था। तीसरा, एक्ट डिस्कवर्ड आफ्टर पासिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी जब आपको कोई सेंटेंस दिया गया उसके बाद एक नए कानून की पहचान हुई है जिससे ये पता लग सकता था कि आपको आपकी जो सजा है वो कम भी हो सकती थी, आपको नहीं भी मिल सकती थी। इवेंट्स विच हैव डेवलप्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी आपके सेंटेंस देने के बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएं जिसमें जरूरत लगे कि आपको राइट टू अपील की जरूरत है, और अदर स्पेशल फीचर्स। तो ये सारी ही इम्यूनिटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन को दी गई हैं फॉर द राइट ऑफ अपील टू द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ sentences like death sentence, life imprisonment by the court। यहाँ पर बात आती है कि ये जो रूल्स हैं ये रूल्स कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इन रूल्स को बनाती है प्रेसिडेंट के लिए, और इनमें कोई कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं चल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहें कि मैं स्क्रूटिनी करना चाहता हूँ तो वो उनको अलाउ नहीं है। जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी प्रेसिडेंट साहब के लिए, उसके अंडर ही प्रेसिडेंट साहब को भी काम करना पड़ेगा। और इसीलिए हम बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि पार्लियामेंट इज सोवरेन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नाउ व्हाट आर द डिप्लोमेटिक पावर्स, और उससे पहले हम एक केस देख लेते हैं, गौड़ू वेंकट रेड्डी केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि ग्रांटिंग ऑफ पार्डन डज नॉट ओवरटर्न द वर्डिक्ट ऑफ कन्विक्शन बट इट ओनली सेट्स असाइड द पनिशमेंट फॉर द क्राइम। इट ओनली एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ द कन्विक्शन बट विदाउट एड्रेसिंग द कन्विक्ट गिल्ट और इनोसेंट। लेकिन जब हम गौड़ू वेंकट रेड्डी केस के बाद आज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो ना केवल कन्विक्शन लेकिन आपको पनिशमेंट दोनों चीज से मुक्त किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने आपकी अपील को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद आप मुक्त कर दिए जाते हैं कानून से भी, सजा से भी। और अगर एक बार आपका राइट टू अपील आप यूज कर चुके हैं तो दोबारा आपको अलाउड नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यानी आप प्रेसिडेंट साहब को एक ही बार बोल सकते हैं कि कोर्ट में मेरे प्रोसीजरल में दिक्कत थी, मेरे केस में दिक्कत थी, कानून बाद में उजागर हुआ, आप एक ही बार कह सकते हैं। एक बार अगर आपने अपील लगा दी और प्रेसिडेंट साहब ने रिजेक्ट कर दिया उसको, आप दोबारा अपील नहीं लगा सकते, फिर आपको सजाए मौत ही दी जाएगी अगर आपको मिली है तो। देन डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशन होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर जब भी इंटरनेशनल ट्रीटीज की चर्चा होती है तो सारे के सारे ये जो कन्वेंशन, ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशन, एमओयूज होते हैं, ये प्रेसिडेंट साहब के नाम पर लिए जाते हैं, उनके नाम पर ही चर्चा होती है। इंटरनेशनल फोरम्स में, अफेयर्स में, जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स जाते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेट जाते हैं, हमारे ऑफिसर जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स बाहर जाते हैं, तो वो जितने भी एमओयू साइन करते हैं, जितने भी कन्वेंशन होती हैं, वो सारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही होती है। मिलिट्री पावर्स, ये आर्मी के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं और कमांडर हैं डिफेंस फोर्सेस के। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुलिस, तो पुलिस के ये चीफ नहीं है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस तो उनके ये नहीं है, क्योंकि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो जहां पर फेडरलिज्म भी इशू होता है तो वहां पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो कमांडर है उन फोर्सेस के। जहां पर डिफेंस फोर्सेस सिर्फ 3, और इसीलिए हम ये देखते भी हैं कि जो प्रेसिडेंट के मिलिट्री गार्ड्स होते हैं वो पुलिस से नहीं आते हैं, वो सिर्फ इन 3 फोर्सेस से आते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पर हम उस चीज को रिफ्लेक्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उसका देखते हैं। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, यहाँ पर बात की जाती है कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इमरजेंसी के चैप्टर में वी विल टेक दिस इमरजेंसी इन डिटेल। दूसरी, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, 365। जो प्रेसिडेंट रूल है उसका एक मैंडेटरी प्रावधान 355 आर्टिकल में लिखा गया है कि इफ द यूनियन गवर्नमेंट feels and thinks on the written grounds that the constitutionalism is in danger and law and order is not maintained by the state, then Article 356 is used and 365 is used. Financial emergency, Article 360, जहां पर फाइनेंशियल
कंट्री को अगर कोई डेंजर है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट साहब लगा सकते हैं, लेकिन इंडिया के इतिहास में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। कल हमने बात की थी वीटो पावर्स की, कि जो लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स होती हैं वहां पर किस तरीके से अलग अलग वीटो पावर्स प्रेसिडेंट यूज करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, पॉकेट वीटो, जिसमें से एक जो थी वो यूएस प्रेसिडेंट के पास होती है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब को वो नहीं दी गई है। और वीटो पावर्स कौन से आर्टिकल के अंदर अगर मेंशन है, ये क्वेश्चन आए तो इट इज एन अंडर आर्टिकल 111। तो 111 आर्टिकल के अंदर जितने भी वीटो पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब को है। सिर्फ एक वीटो है जो हमारे प्रेसिडेंट को के पास नहीं है, वो है क्वालिफाइड वीटो। यानी क्वालिफाइड वीटो के अंदर ये होता है कि एक बार जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कोई कानून भेजती है तो सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर पहली बार में भेजा, लेकिन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि आप रिकंसीडर करवाइए, और रिकंसीडर करवाने के बाद दोबारा स्पेशल मेजोरिटी से भेजा, तो प्रेसिडेंट की मजबूरी हो जाएगी उसको पास करना। ये यूएस में होता है, इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारे प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट ऑफिस की सैंक्टिटी सेकंडनेस है उस पर सवाल उठेंगे। तो दैट इज वाई वी डू नॉट हैव क्वालिफाइड वीटो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिर हमने बात की पार्डनिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज मेंशन अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो प्रोमिलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस को, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। तो ऑर्डिनेंस की हम देख लेते हैं थोड़ा। ऑर्डिनेंस कब कब बनाया जा सकता है? जब पार्लियामेंट के अंदर रिसेस चल रहा हो, यानी दो सेशन के बीच में जो टाइम लैग होता है उसको रिसेस बोलते हैं। या फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से कोई एक हाउस ना हो। प्रैक्टिकली देखा जाता है कि लोकसभा नहीं होता है, क्योंकि 5 साल के बाद उसको डिसॉल्व होना होता है, पहले भी हो जाता है अंडर नेशनल इमरजेंसी एंड अदर प्रोविजंस। तब भी प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही अनफोर्सीन है, या फिर बहुत ही पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अर्जेंट मैटर है, उन पे जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रेसिडेंट किसी भी कानून के ऊपर या किसी भी मुद्दे के ऊपर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं? So if this question appears, so the answer will be no, because the president power to make ordinance and to promulgate ordinance is coterminous with the legislative power of the parliament, which simply means कि जो यूनियन लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बना सकते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन ये आए कि क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ट्रू और फॉल्स, तो करुणा आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्लीज स्पीक फर्स्ट। मानसी। इट शुड बी ट्रू प्रवेश, पैरेलल है, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, जब तक कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं आता तो वो एक तरीके से लॉ की तरह ही एक्ट करता है। No, Mansi, it is false. Ordinance is not a parallel power of legislation because of number of reasons. Number one, Parliament when makes a bill, they can make a bill only in the union list and in the concurrent list, but not in the state list. But president can do in all three powers, so it is unequal here. Number two, the sanctioning of the parliamentary bill or an act is supported by majority, by simple majority or special majority, and that is why it is said that it is a proper legislation. But when we are talking about ordinance, it is an executive legislation, which simply means that legislature do not have any role in making ordinance. That is why it is not पैरेलल पावर, इट इज मेड बाय एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कानून बनाया, प्रेसिडेंट के नाम पे बनाया, प्रेसिडेंट को बोला आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन जो नॉर्मल लॉ होता है उसमें एग्जीक्यूटिव कानून नहीं बनाती, उसमें पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट उसको सपोर्ट विथड्रॉ करती है, पार्लियामेंट उसको साइन करती है, तब वो प्रेसिडेंट के पास भेजती है, और प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट भी करना होता है। इसीलिए दिस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। देन
He can make an ordinance only when he is satisfied that circumstance exists which compels it necessary to make a ordinance. लेकिन 1970 के टाइम पे कोपर केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन की बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए, ये प्रेसिडेंट नहीं है। और अगर खाली प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन हुई तो वो ऑर्डिनेंस नल एंड वाइड कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलेफाइड। ये जो सेटिस्फेक्शन है ये होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय पीएम अंडर आर्टिकल 75, अगर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसके बाद the decision of the president questioned on the ground that president has prorogued one house or both deliberately, यानी अगर नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर करना है तो एक और ग्राउंड है, अगर प्रेसिडेंट ने जानबूझकर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया है क्योंकि वो ऐसे किसी मुद्दे पर कानून बनाना चाहते थे जिस पर एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, तो भी उस पर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू के अंडर अगर वो फाउंड होता है मेलाफाइड डिसीजन तो हाउस को दोबारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और उस ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। देन 1975 के टाइम पर जब हमने देखा कि इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर मैडम थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, वो इस मैटर के ऊपर भी, ऑर्डिनेंस मैटर के ऊपर भी एक कानून लेकर आई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। इस कानून का नाम है 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। यहां पर यह बोला गया कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल होगी, कंक्लूसिव होगी और जुडिशियल रिव्यू के परे होगी। यानी जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने 1971 में बात कही कि जुडिशियल रिव्यू की जरूरत नहीं है, उन्होंने दोबारा 1975 के अंदर जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल करने की कोशिश की और इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो द विक्टिम ऑफ इमरजेंसी। लेकिन 1978 के अंदर जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको भी, ये जो प्रोविजन जुडिशियल रिव्यू का छीना गया था, इसको भी डिलीट किया और कहा कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन जस्टिशिएबल है कोर्ट के अंदर। प्रेसिडेंट अगर ऑर्डिनेंस बनाते हैं, अगर कोई नॉर्मल सिटीजन भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहे कि ऑर्डिनेंस ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड पे है तो जुडिशियल रिव्यू लगेगा, मेलाफाइड चेक होगा। इसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो को एक्सटेंसिव बोली जाती है विद इन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका पहला मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बनाया जाएगा जहां पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, इसलिए वो को एक्सटेंसिव है, यानी लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज में चलता है, क्योंकि जिनका मुद्दों पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी उन्हीं मुद्दों पर प्रेसिडेंट साहब बनाएंगे ऑर्डिनेंस। दूसरा, को एक्सटेंसिव का मतलब क्या है? जिस तरीके से एक नॉर्मल बिल जो पार्लियामेंट बनाती है उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस होती हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकता, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं लगा सकता, वो फेडरलिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं कर सकता, इसी तरीके से अगर ऑर्डिनेंस ने भी ऐसा कुछ प्रोविजन कर दिया तो जुडिशियल रिव्यू के तहत ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। इसलिए ये को एक्सटेंसिव पावर है। तो इन दो कारणों से ऑर्डिनेंस पावर को को एक्सटेंसिव पावर कहा जाता है पार्लियामेंट की तरह। और अब किस तरीके से ऑर्डिनेंस का अप्रूवल होता है या डिसअप्रूवल होता है? जो भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट बनाएंगे वो दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ेगा जब वो रिसेंबल होते हैं, और टाइम पीरियड क्या है? 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली। यानी जैसे ही लोकसभा रीअसेंबल की होती है तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपको ऑर्डिनेंस दिखाना पड़ेगा और अप्रूव करेंगे, नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है मेजोरिटी के साथ। अगर आपने नहीं किया, अगर वो अप्रूव ही नहीं हुआ 6 वीक तक और पार्लियामेंट दोनों हाउस बैठे हुए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी ऑर्डिनेंस वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। और अगर 6 वीक से पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में से किसी भी हाउस को ऐसा लगे या दोनों हाउस को ऐसा लगे कि ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट की पावर को भी एनक्रोच कर गया, ऐसे मुद्दों पर कानून बनाया जिसमें पार्लियामेंट को पावर नहीं है, तो उसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की, ये होती है 6 मंथ 6 वीक्स, यानी 6 मंथ तक ही आपका ऑर्डिनेंस मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है और उसके बाद 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली। यानी इस टाइम पीरियड में या तो वो डिलीट होगा पार्लियामेंट, अगर दोनों हाउस बैठे हैं, नहीं तो वो अप्रूव होगा। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो एक नॉर्मल लॉ बन जाता है, अगर वो नहीं होता है तो वो डिलीट हो जाता है, वो ऑर्डिनेंस नहीं रहता है। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ऑर्डिनेंस के अंडर जो भी प्रेसिडेंट ने काम किए हैं उनके ऊपर कोई भी
कटेल नहीं लग सकता है। यानी एक बार जो प्रेसिडेंट ने काम कर दिया, चाहे वो गलत ही कर दिया, आप ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट ने की ऑर्डिनेंस की वजह से 50 लोगों की जान गई तो प्रेसिडेंट इज लायबल। नो, प्रेसिडेंट विल नॉट बी लायबल, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिकल इम्यूनिटी एंड द प्रेस्टीज विच इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफिस। देन क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के साथ कुछ कर सकते हैं? तो यस, प्रेसिडेंट कैन आल्सो विदड्रॉ एनी टाइम इफ यू फील सो दैट ऑर्डिनेंस इज क्रिएटिंग सम इश्यूज। जब हम बात देखते हैं फार्म लॉज की, तो फार्म लॉज वाज नॉट द बिल, फार्म लॉज वर द ऑर्डिनेंसेस ओनली, एंड दोज ऑर्डिनेंसेस वर टेकन बैक, and this is not a discretionary power of the president of India to promulgate or withdraw the ordinances. Why it is not a discretionary? क्योंकि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस है अंडर आर्टिकल 123 is made on the advice, on the satisfaction of the executive or the council of minister। तो council of minister ही बताएंगे प्रेसिडेंट को कब आपको ऑर्डिनेंस बनाना है, और वही बताएंगे कब आपको वापस उसको डिलीट करना है या विद्रॉ करना है। और इस चीज को जब हमने बात की कि जो भी कानून या जो भी एक्टिविटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हुए हैं ऑर्डिनेंस के टाइम पर, वो रिट्रोस्पेक्टिव होंगे, यानी पिछली डेट से। इसका मतलब यही है कि दे कैन कम इनटू फोर्स फ्रॉम अ बैक डेट। एंड द लास्ट थिंग, ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अमेंडमेंट प्रोसीजर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है अंडर आर्टिकल 368। तो वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है प्रोसेस एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, और वो बहुत ही रिगोरस एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस पावर के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐसा कोई केस है जिसने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के ऊपर कुछ बोला है। तो आई बिलीव सो देयर इज अ केस, आई थिंक इन 1987, जिसको बोलते हैं वाधवा, डीसी वाधवा केस। यस, डीसी वाधवा केस। यहां पर कोर्ट ने बोला था कि आपने एक बार तो ऑर्डिनेंस बना दिया, लेकिन क्या पता आप बार बार ऑर्डिनेंस बनाए, जिसको बोला जाता है रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस। तो अगर आप सक्सेसिव रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस बनाते हैं, लेकिन एक ही मुद्दे के ऊपर आपने उसके अंदर ना कोई अमेंडमेंट किया ना कोई चेंज किया, बिल्कुल सेम का सेम टेक्स्ट है, जैसे कि हमारे जो एग्जाम्स की नोटिफिकेशन होती है उसके अंदर अमेंडमेंट सिर्फ इतना होता है कि डेट बदल दी जाती है, सिलेबस, नोटिफिकेशन, एग्जाम सेंटर सब सेम ही रहता है। तो इसी तरीके से अगर ऑर्डिनेंस का जो पूरा ब्यौरा है, अगर उसमें सेम टेक्स्ट है, एक भी चीज का हेर फेर नहीं है, विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट एनीथिंग चेंज, अगर वो पास करती है असेंबली, दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डीसी वाधवा केस 1987 में ये कहा गया कि अगर आपने बिना प्रॉमिल ऑर्डिनेंसेस के अंदर कुछ भी चेंज किए, उसको बार बार अगर आप पास करवा रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, या फिर गवर्नर पास करवा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, दैट विल बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी टाइम ऑन द इमीडिएट बेसिस इट हैज टू बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट, इन द स्टेट बाय हाई कोर्ट एंड इन द यूनियन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्यों? इफ अ क्वेश्चन कम्स, ऐसा क्यों? so the reason is ordinance is the part of executive decision, it is not a law making process, it is a coextensive and the temporary measure to deal the emergencies and unforeseen situations. And if the ordinances will rule the country, then it will be against the violation of principle of constitution, and particularly the parliamentary form of government, which says that representative house have to make law to run the country. But here the president, who is the de jure or the nominal entity working on the aid and advice of the council of ministers, which is showing the executive decision, not the legislature. Then before we move forward, we can talk about the constitutional discretions of the president, कि क्या हमारे यहाँ president को कोई discretion है? So if we study the constitution in detail, we find that there is no constitutional discretion available to the president of India. But unlike governor, whose discretionary power is clearly mentioned, so do we have any sort of discretion? So yes, we have some political discretion for the president. Number one, the process of prime minister appointment. जहां पर बात की जाती है कि अगर किसी भी पार्टी की कोई मेजोरिटी नहीं है लोकसभा के अंदर, अगर कोई पार्टी अपनी
मेजोरिटी पास शो ही नहीं कर पा रही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तब पॉलिटिकल डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट की कि वो जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, और उसको बोले कि आप 6 महीने के अंदर अगर मेंबर नहीं है तो मेंबर बनिए, और आप 1 महीने के अंदर हमें प्रूफ करके दिखाइए मेजोरिटी। दूसरी पॉलिटिकल डिस्क्रिशन क्या है, अगर आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, जैसा कि हमने देखा इंदिरा गांधी जी के केस में, राजीव गांधी के केस में, तब आपको प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। इवन एक आम आदमी को भी वो उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ये उनकी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है। ऐसा क्यों? टू प्रिवेंट द सुपर एनिमेशन। इस टर्म का मतलब होता है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल ऑफिस में चेयर्स हैं जिनको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्राइम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये एक ऐसी पोस्ट है जिनको आप 1 घंटे के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते, इन पे कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए। तीसरी पावर क्या है डिस्क्रिशनरी, कि आप आर्टिकल 75 के अंदर जिन लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो लेजिस्लेचर को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसमें एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट आपको दिखे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना लोकसभा के अंदर ही उनकी कोई नहीं सुनता है, उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो भी आप उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज dissolution of the Lok Sabha. So dissolution of the Lok Sabha is not a constitutional discretion, it is a political discretion of the president, where he can dismiss not only the council of minister but can also the dissolve Lok Sabha if the council of minister loses its majority. यानी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना तो अपनी इफेक्टिव मेजोरिटी को प्रूव कर पा रहे हैं, तो उनको तो आप रिजाइन करवाओगे करवाओगे, साथ में लोकसभा को भी डिसोल्व कर दोगे, क्योंकि अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो लोकसभा के अंदर जो है आप दोबारा से इलेक्शन करवाते हैं। So this is regarding the ordinance power and pocket veto power, and the last thing is discretionary powers of the president. So these are the acts which we can. प्रवेश, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन ऑन दिस क्वेश्चन मोर? आपने अभी एक सेंटेंस बोला कि एनी कॉमन पर्सन कैन बी मेड अ प्राइम मिनिस्टर अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर्स बाय द प्रेसिडेंट। तो Yes. एनी कॉमन पर्सन मींस एनीवन? anyone. मतलब कि पॉलिटिशियन भी नहीं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ही और शी इज एन एमपी आल्सो? यस, उसको बना सकते हैं, Even लेकिन even प्रोवाइडेड if a दैट person who 6 is महीने के living अंदर in इलेक्शन slum, जीतनी पड़ेगा उनको राज्यसभा के थ्रू। या even if a person who is living in slums, he can be chosen by the president, he can be made the prime minister. Why हाँ, so? He will check only 3 to 4 conditions: whether he is a citizen of India. If it is, then okay. He is having more than 25 years of age, okay. He is fully immune from insolvency, then okay. He is not under any criminal act, it is okay. उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है सिविल और क्रिमिनल केसेस का, देन ओके। अगर ऐसी सारी कंडीशन है तो स्लम के अंदर बैठा हुआ एक इंसान भी, उसको भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट उनको बोलेंगे आप 6 महीने के अंदर अपना इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन कमीशन से बोला जाएगा, उनका इलेक्शन करवाइए, उनको किसी भी सीट से जितवाइए, आप राज्यसभा के मेंबर बना दिए जा सकते हैं। वो नहीं होता आपको नॉमिनेट कर दिया जा सकता है, अगर वो भी नहीं होता आपका बाई इलेक्शन करवा दिया जा सकता है, अगर वो भी नहीं होता है तो आपको 6 महीने के अंदर किसी भी स्टेट से आपको एमपी बनवा दिया जा सकता है। तो आप एलिजिबल होने चाहिए बस एमपी बनने की, 25 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए, और इंसॉल्वेंसी का चार्ज नहीं होना चाहिए। ओके, आप बन जाइए प्राइम मिनिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। So now we can take the questions. एग्जाम्पल प्रवेश, यहाँ पे एग्जाम्पल बोल सकते हैं राजीव गांधी। Yes, we can say. वो कुछ नहीं थे ना, वो सिर्फ बेटे थे, बाद में फिर वो उनको बनाया गया सब चीज। He was a pilot, so he was in the pilot field. So we have only 5 minutes, so I'm thinking we can discuss these articles. The rest of the questions we can take tomorrow. So Article 3 is referring a bill. Article 3 we talked the internal readjustment, उसका बिल भी जो है प्रेसिडेंट को देना, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से होता है। आर्टिकल 56 के अंदर जब हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो
by writing under his hand address to the vice president resign his office, यानी अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो सीजीआई को नहीं देते, अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। आर्टिकल 57 के अंदर प्रेसिडेंट डिसाइडिंग टू कंटेस्ट फॉर री इलेक्शन टू द सेम ऑफिस, यानी आर्टिकल 57 के अंदर ही हमारे यहाँ मेंशन है कि कितने भी टाइम के लिए, कितने भी टेन्योर के लिए आप दोबारा प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर बैन नहीं है। आर्टिकल 61 के अंदर हमने देखा इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है चार्जेस, और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउसेस को देती है, दोनों हाउस स्पेशल मेजोरिटी उसको पास करते हैं। जैसे ही पास करते हैं तो प्रेसिडेंट इज ड्यूली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग दैट पोजीशन। आर्टिकल 74 के अंदर हमने देखा कि रिटर्निंग एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बिल मेरे पास आया है जिसपे फुल तरीके से डेलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो वो दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चर्चा करवाइए और दोबारा से बिल मेरे पास कर लेकर आइए। आर्टिकल 75 के अंदर देखते हैं, आर्टिकल 75 जो कि बात करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेडेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जितना भी काम प्रेसिडेंट को करना है वो सारा एड एंड एडवाइस पर होगा प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। आर्टिकल 78 के अंदर हमने देखा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है कि आप यूनियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दीजिए। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है इस एक्ट के अंदर कि उनको देना है, और प्रेसिडेंट पूछ भी सकते हैं कि आपने अभी तक क्यों नहीं दिया है, गिव मी द रिपोर्टिंग। आर्टिकल 85 के अंदर हमने देखा कि प्रेसिडेंट की सम्मनिंग पावर होती है सेशन के अंदर, और वो सम्मन करते हैं हाउसेस को। और हमारे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये भी है कि देयर शुड नॉट बी अ मोर देन 6 months गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 के अंदर वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, और फ्रेश इलेक्शन भी बुला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास करवा सकते हैं। अगर वो पास हो जाता है तो उसके हिसाब से वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को। आर्टिकल 103 के अंदर हमने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स के ऊपर वो एडवाइस लेते हैं इलेक्शन कमीशन से, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो लोकसभा है, इवन जितने भी एमपीज हैं उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की जो पावर है अंडर आर्टिकल 103 प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 111 के अंदर वो नॉन मनी बिल जो है उनको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं, और यहाँ पर पॉकेट वीटो का भी वो यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 118 के हमने अंदर देखा कि वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं दोनों हाउसेस की, ओनली ऑन वन थिंग दैट इज ऑर्डिनरी बिल, व्हेन it becomes necessary to remove the hurdles within the houses and to streamline the course of action on the law making। आर्टिकल 123 के अंदर हमने ऑर्डिनेंस पावर की बात करी। 124 के अंदर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये भी जो है पार्लियामेंट ऐसा रिजोल्यूशन बनाती है और स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो पास होता है, तब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, जजेस जो है रिमूव कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 143 के अंदर हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है किस तरीके से किसी भी मैटर पर ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, प्रोवाइडेड ओनली दैट मैटर शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट अदर। आर्टिकल 280 के अंदर वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनके टर्म्स कंडीशंस, उनकी मेंबरशिप, उनके क्वालिफिकेशन सारा वो डिटरमाइन करते हैं। 281 के अंदर उनकी जो रिकमेंडेशंस है उनको पार्लियामेंट के अंदर वो पेश करते हैं, और उसके ऊपर रिटर्न रिकमेंडेशंस जो है उनको दी जाती है कि फाइनेंस कमीशन की कौन सी एडवाइस है, उसको अगर मना किया गया है तो रिटर्न में दीजिए क्यों मना किया गया है। तो these are the information as far as the President's Office of India is concerned, which is considered as de jure, nominal and the highest office in India. So rest of the questions which we have of the mains exam, we will be discussing them in detail in the tomorrow session. So thank you so much and keep watching Ansarkari.